Assalamu alaikum. Today I am in front of you to solve past papers of Khan board, and this is ninth class algebraic expressions and formulas. ये chapter number 4 है आपका from your book Punjab text book board. So this is question number 4. Okay, so question number 4 is of 4 marks. ठीक है. Part A है, if A plus B plus C, the value of A plus B plus C is 16, and AB plus BC plus CA, the value is 56, and you need to find out the value of A square plus B square plus C square. ठीक है, तो ये टोटल 4 मार्क्स का है और इसमें से 3 मार्क्स का क्वेश्चन ये आपके सामने है. ठीक है, so let's get started. How will we solve this question? That would be A plus B plus C whole square. Okay, and that is, I will write here, A square plus B square plus C square plus 2 AB plus BC plus CA. Okay, so the value of A plus B plus C is given, which is 16, AB plus BC plus CA, which is 56, and we need to find out the value of A square plus B square plus C square. ठीक है, तो ये वैल्यू आपको गिवन है, ये वैल्यू आपको गिवन है, एंड यू नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस term. Okay, so what will we do? We will put the values first. A plus B plus C, I will put the value, that is 16 whole square. Okay, and then A square plus B square plus C square we need to find out, so put it as it is, and here I will put it inside the bracket. Okay, इसलिए कि हमें इसको मालूम करना है तो मैंने इसको एक जगह कर लिया. 2, and this is the value of AB plus BC plus CA, which is 56, and here we are interested in A square plus B square plus C square, so let me write it like this: 16 square equals A square plus B square plus C square. Okay, plus 2 6 are 12, 2 5 are 10, and 1 11. Okay, so that would be 16 multiplied by 60 minus 112 is equal to A square plus B square plus C square, and it can be written as A square plus B square plus C square. Okay, and that would be 2 out of 6, that would be 4, 1 out of 5, that would be 4, and 1 out of 2, that would be 1. That is your answer. तो ये क्वेश्चन आप एज इट इज़ अगर इसी अंदाज का क्वेश्चन आए और आप पेपर में सॉल्व करें तो यू विल गेट होल मार्क्स. नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस इज ऑफ 1 मार्क. ठीक है, टोटल आपके पास कितने मार्क्स हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे. ठीक है, इफ x इज इक्वल टू 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब माइनस 1. ठीक है, तो हाउ वुड यू फाइंड आउट दिस वैल्यू x क्यूब माइनस 1? ठीक है, दिस इज एम्प्टी स्पेस, you will put the value as a 2, that would be 2 cube. Okay, minus 1, what it would be? 2 2s are 4, 4 2s are 8, minus 1, very easy question. 7 is your answer. Okay, this is now 2012 question number 4, and total marks for 4 marks का होता है ये. ठीक है, algebraic expression and algebraic formula. Show that 1 minus under root a upon 1 plus under root a can also be written as 1 minus under root a, which is you can call surd a upon 1 minus a. ठीक है, तो आपको इसको शो करना है कि इसके इक्वल होता है. Now this is 2012, we are going to solve. This is question number 4 of the paper, Aga Khan board final paper, and this is of 4 marks. ठीक है, तो ये जो इसका फर्स्ट पार्ट है, शो दैट 1 माइनस सर्ड ए अपॉन 1 प्लस सर्ड ए कैन ऑल्सो बी रिटन एज 1 माइनस सर्ड ए अपॉन 1 माइनस ए. यानी आपको इसको लेकर चलना है और इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देना है. ठीक है, तो देखते हैं ये कन्वर्ट होता है कि नहीं. सो लेट मी राइट इट लाइक दिस: 1 माइनस सर्ड ए अपॉन 1 प्लस सर्ड ए.
ठीक है। तो यहाँ दो मेथड हैं इसको सॉल्व करने के। एक तो ये है कि आप पहले इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर दीजिए। व्हाट इट वुड बी, आई विल राइट हियर लाइक दिस, 1 अपॉन सर्ड ए, ठीक है। और कैसे होगा, ये जो आपके पास एलसीएम आया है यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देंगे। इफ़ आई विल मल्टीप्लाई दिस 1 बाय दिस 1 प्लस सर्ड ए, दैट वुड बी द सेम एक्सप्रेशन, ओके। एंड माइनस वुड बी ओवर देयर। जब आप इस पूरी टर्म को, ये वाली टर्म को जो आपके पास डिनोमिनेटर में है, यहाँ रख के सॉल्व करेंगे तो दैट वुड बी, लेट मी राइट इट, दैट वुड बी लाइक दिस, ओके। कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ आपके पास ये बच जाएगा, ठीक है। तो दैट वुड बी 1 प्लस, लेट मी रिमूव द ब्रैकेट्स, दैट इज 1 प्लस under root a, okay, that would be cancelled, and you can write it like this, 1 upon 1 plus surd a. Now you need to remove the this surd from the denominator. In order to do this, we need to multiply and divide by the conjugate. What is the conjugate? You will just change the sign which is in between the टर्म्स, ओके। तो यहाँ आपके पास ये आ गया है। अब इसको कैसे कर लेंगे, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दैट इज़ 1 माइनस सर्ड ए अपॉन, बट इन द डिनोमिनेटर यू विल यूज़ द फार्मूला ऑफ डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। तो ये क्या बन जाएगा, 1 स्क्वायर माइनस सर्ड ए स्क्वायर, एंड दैट वुड बी 1 माइनस सर्ड ए अपॉन, that would be cancelled, and this is 1 minus a, which you can see this is here, okay. So this is proved. So this is the B part. So this is B part, okay. If 3pq is equal to negative 15, p minus q whole cube is equal to 216, and we need to find out the value of p cube minus q cube. So you need to find out the value of p, you need to find out the value of p cube minus q cube. So इसकी वैल्यू निकालने के लिए फर्स्ट आई विल यूज़ द फार्मूला ऑफ होल क्यूब, कीप इट इन योर माइंड, ठीक है। होल क्यूब का फार्मूला यहाँ ओपन करेंगे। व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ p माइनस क्यू होल क्यूब, दिस इज p क्यूब माइनस 3p क्यूब, p माइनस क्यू माइनस क्यू क्यूब, ओके। अब हम इसको किस तरह लिख लेंगे, p माइनस क्यू होल क्यूब, ओके। थोड़ा सा इसको सेट कर लेते हैं। वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ p क्यूब माइनस क्यू क्यूब, सो वी विल राइट इट टुगेदर, ठीक है। इसको ऐसे लिख लिया, माइनस 3p क्यू p माइनस क्यू, ओके। So here you can see that p minus q, we don't have the value of p minus q, हमारे पास p minus q की वैल्यू मौजूद नहीं है। इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ देखिए p माइनस क्यू होल क्यूब इज इक्वल टू 216, यहाँ लिख लेते हैं इसे p माइनस क्यू होल क्यूब equals 216. We can find out the value of p minus q from this equation, ठीक है। तो यहाँ हम दोनों तरफ इसका क्यूब रूट ले लेते हैं, ठीक है, like this is cube root and this is also cube root, okay. How many times, 6 into 6 into 6, if we will multiply 6 3 times, that would be 216, so 6 would be the cube root of p minus q होल क्यूब, ठीक है। इसका क्यूब रूट निकाल लिया है, तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई है। आई विल पुट दिस वैल्यू हियर, ओके। सो p minus q whole cube is equal to 216, okay, and we are interested in p cube minus q cube, so put it inside the bracket ताकि आपको पता रहे कि हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। माइनस एंड 3pq, दिस इज इन नेगेटिव 15, ओके, एंड p minus q, दिस इज 6। तो फर्स्ट आई विल ओपन द ब्रैकेट, ओके। ये तो ऐसे ही रहेगा, p क्यूब माइनस q क्यूब माइनस माइनस प्लस 90, ओके। नाउ आई कैन राइट इट लाइक दिस, p क्यूब माइनस q क्यूब प्लस 90 इक्वल्स 216। क्या किया यहाँ मैंने पूरा राइट हैंड साइड लेफ्ट पे और लेफ्ट
राइट पे शिफ्ट कर दिया, ठीक है। और अगर हम ऐसा कर रहे होते हैं तो नो नीड टू चेंज द साइंस, सो दैट इज हियर वी आर इंटरेस्टेड इन, ठीक है। दैट इज 216 minus 90 and that would be 0 out of 6, that is 6, and 9 out of 11 to 126. This is the value of p cube minus q cube. This is your answer. Now this is paper of 2013, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 मार्क्स, 2 मार्क्स का एक पार्ट है, 2 मार्क्स का दूसरा पार्ट है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट पहले देख लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन व्हेन x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -1। सो वी नीड टू इवेलुएट दिस एक्सप्रेशन, ठीक है। तो मैं यहाँ इसको ऐसे लिख देती हूँ, -x² y अपॉन x square plus y square, okay. And now I will put the values. X is equal to 2, y is equal to -1 whole square, minus x square means 2 square and -1, ठीक है। और यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, 2 square plus -1 whole square, ठीक है। So I will multiply, first I will open this bracket, -1 whole square, that would be, because the power is even, so the value of the result would be +1, okay, because it is even number in exponent. So 2 ones are 2 हो जाएगा ये, माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, 2 2s are 4 4 and minus minus plus plus 4, okay। and in the denominator 2 2s are 4 और ये भी even power है, that would be +1, okay, and that would be 6 upon 5, change it into mixed number, 5 ones are 5. This is your answer, okay। Now let's go towards second part. We need to simplify it. This is x plus y whole square minus x minus y whole square upon 2x square y square. So let me write it over here, minus x minus y whole square upon 2x square y square, okay। So this is in the numerator, you can see that अच्छा, जब भी सिंप्लीफाई का क्वेश्चन आए तो आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को फैक्टराइज कर देना है, और फैक्टराइज करके फिर उसके बाद उसकी कैंसिलेशन हो जाएगी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। तो इन द न्यूमरेटर यू कैन सी दैट दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर्स। तो आई कैन राइट इट लाइक दिस इज a एंड दिस इज b, ओके। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो हम इसका फॉर्मूला कैसे खोलेंगे, let me write over here whatever we are going to use the formula. A is square minus b square can be opened as a minus b, a plus b, okay। So here I will write x plus y minus x minus y, okay, and x plus y plus x minus y, okay। एक दफ़ा प्लस के साथ, एक दफ़ा माइनस के साथ, एंड इन द डिनोमिनेटर 2x square y square. So that would be x plus y minus x plus y, okay, and that is x plus y plus x minus y upon 2x square y square. Here we will cancel these two terms, so that would be 2y and 2x, okay, and in the denominator, that is 2x square y square can be written as 4xy upon 2x square y square. Here I will cut this x by 1x and this y by 1y, and this is 2 2s are 4, that is 2 upon x y, okay। After simplification, that would be the answer, okay।
अच्छा, इसके बाद 1 मार्क, दिस इज पार्ट बी, ठीक है. राइट द कॉन्जुगेट ऑफ under root 2 minus under root 3, this is of 1 mark. How would I write the conjugate? Okay, everybody knows, very easy question. Conjugate of this expression would be equal to, क्या करेंगे, सिर्फ हम the sign between the numbers we will change it. This is 3. Okay. अच्छा, इसका नेक्स्ट पार्ट 2 है. इफ a माइनस बी इज इक्वल टू 1, 3 मार्क्स का है ये, ठीक है. एंड a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू 19, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3ab. ओके, तो यहाँ हम जो फॉर्मूला ओपन करेंगे, हम लिखेंगे a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला ओपन करेंगे. ओके, क्यूब आ रहा है ना, जब भी क्यूब आ रहा हो, स्क्वायर आ रहा हो तो होल स्क्वायर, क्यूब आ रहा हो तो होल क्यूब. ओके, तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ a माइनस बी whole cube? That is a cube minus b cube minus 3ab a minus b. Okay, so let's get started. Put the value. यहाँ हमें 3ab की वैल्यू मालूम करनी, so we are interested here. Okay, तो अब हम इसकी वैल्यू कैसे मालूम करेंगे? आपको नज़र आ रहा है a माइनस बी होल क्यूब. a माइनस बी की वैल्यू क्या दी हुई है? 1 दी हुई है. तो आई विल राइट हियर लाइक दिस. आई विल पुट द वैल्यू एंड a क्यूब माइनस b क्यूब, दिस इज द वैल्यू ऑफ a क्यूब माइनस b क्यूब इज 19. ठीक है, पुट इट इनसाइड द ब्रैकेट एंड देन माइनस 3ab, ये हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ठीक है, एंड a माइनस b इज 1. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ये क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा. दैट इज 19 माइनस 3ab. ओके, अब हम इसको रिप्लेस कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड. 3ab इक्वल्स 1 एंड माइनस 3ab equals 1 minus 19. They are interested in the value of 3ab, so minus minus will be cancelled. अच्छा, यहाँ पर कुछ बच्चे ये करते हैं कि 3ab इज इक्वल टू 18 आ रहा है तो वो ab की वैल्यू निकाल देते हैं. ab इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाय 3 और 6. दिस इज़ रॉन्ग. ओके, यू नीड टू फोकस व्हाट इज़ बीइंग आस्क्ड. जो चीज़ पूछी जा रही है उसको बहुत फोकस्ड रहना है. 3ab की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ab की नहीं करनी है. ठीक है, तो ये अगर आप इस तरह से करके ab की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं तो दैट वुड बी रॉन्ग. ठीक है, आपके मार्क्स यहाँ पर डिडक्ट हो जाएंगे. सो यू विल राइट हियर 3ab equals 18. दिस इज योर आंसर. ठीक है, बिकॉज वी वर इंटरेस्टेड इन द वैल्यू ऑफ 3ab. ठीक है, अगर ab पूछा जाता तो फिर 3 से डिवाइड कर देते 18 को. यहाँ 3ab पूछा जा रहा है, सो वी विल नॉट डिवाइड इट बाय 3. 3ab इज इक्वल टू 18 इज योर आंसर. एंड नाउ दिस इज़ 2014 द पास्ट पेपर. टोटल मार्क्स आपके 4 हैं और फर्स्ट पार्ट 2 मार्क्स का है और सेकंड पार्ट भी 2 मार्क्स का है. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2z क्यूब अपॉन 2x स्क्वायर z. ठीक है, यहाँ हमें x इज इक्वल टू -1 गिवन है, y इज इक्वल टू 1 एंड z इज इक्वल टू 2. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. x की वैल्यू आपके पास -1 होल स्क्वायर, y की वैल्यू 1 and 2 and the value of z is 2 cube. Okay, and in the denominator 2x, the value of x is -1 whole square and z is 2. Okay, so how will you write it? -1 raised to the power 2 means that would be 1. 1 ones are 1 and 2. 2 2s are 4. 4 2s are 8. ठीक है, and here 2 2s are 4 and -1 whole square would be 1. तो ये आपका 4 बन जाएगा. 1 minus 2 8s are 16 upon 4 minus 15 upon 4. That would be in mixed number. 4 3s are 12. Okay, this is your answer. And now this is part 2. How would you solve that? Simplify x square minus 4 multiplied by x plus 2 upon x minus 2. This is of 2 marks. Let me write it
as yes, this is of 2 marks, x square minus 4, okay, multiplied by x plus 2 upon x minus 2. ठीक है, जब भी आपके पास ग्रुप ऑफ नंबर्स हों जस्ट राइट इट इनसाइड द ब्रैकेट्स. ठीक है, इसको ब्रैकेट के अंदर कर लेना चाहिए ताकि कन्फ्यूजन ना रहे. नाउ आई विल open it. I will factorize x square minus 4, difference of two squares, what it would be, x square minus 2 square. Okay, if you remember, that would be like this. Let me write like this, minus 2 square. ठीक है, और यहाँ आपके पास है x plus 2 and x minus 2. very easy question. तो ये आपके पास बन जाएगा x minus 2, x plus 2. ठीक है, difference of two squares, and x plus 2 upon x minus 2. we will cancel these two terms, and that is x plus 2, x plus 2, which can be written as x plus 2 whole square. Okay, this is the answer of this part. So this is question number 4, total 4 marks. ठीक है, तो reduce this expression to its simplest form. Let me write it here, xy, x minus y upon 2x plus y, okay, divided by x square y minus xy square upon 2x square plus 2xy plus y square. okay, तो इसको मुझे सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर जाना है. हाउ वुड आई, देखते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको फोकस करें, बीच में इसके डिवीजन लगा हुआ है, तो जो राइट हैंड की तरफ आपका फ्रैक्शन है, यू नीड टू फ्लिप इट ओवर विद द चेंज, you need to flip it over the right hand side with the change in division sign. it would be changed into multiplication. ठीक है, तो यहाँ हम इसको दोबारा लिखते हैं, x y x minus y, okay, and this is 2x plus y multiplication sign, and the denominator would be the numerator. ठीक है, 2xy plus y square upon that would go in the denominator. ठीक है, सबसे पहले हमने ये काम कर लिया, and then x y x minus y upon 2x plus y as it is, and multiplication. यहाँ हम कुछ कर नहीं सकते मज़ीद लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर, ये पहले ही फैक्टराइज्ड है. यहाँ हम इसको फैक्टराइज कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर. विच फार्मूला इज दिस? इज द फार्मूला ऑफ x प्लस वाई होल स्क्वायर. परफेक्ट स्क्वायर का फार्मूला है. ठीक है, so I will write it like this, and in the denominator xy is the common term, so that is x minus y. okay, x minus y will be cancelled, x plus y, one term will be cancelled by this. okay, xy will be cancelled by this, 2 would be cancelled by 2, that is 1 is your answer. okay, अच्छा, अब पार्ट बी की तरफ चले जाते हैं. अप्लाई कॉन्टीन्यूड प्रोडक्ट टू वेरीफाई दैट 2x plus 1 2x minus 1 4x square plus 2x plus 1 4x square minus 2x plus 1 is equal to 64x raised to the power 6 minus 1. आपने इसको वेरीफाई करना है, मीन्स प्रूफ करना है. ठीक है, ये पार्ट ए था. पार्ट बी इज, यू विल राइट इट लाइक दिस, 2x plus 1 एज इट इज़. पहले तो हम क्वेश्चन लिख लेंगे, 2x minus 1 4x square. यहाँ आपको फार्मूला याद करना बेइंतहा ज़रूरी है, अदरवाइज मार्क्स वुड बी कट. ओके, तो 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 फर्स्ट प्लस, देन 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1. ठीक है, इसको हम रिड्यूस करके किस में क्या फॉर्म दे देंगे, 64x 6 माइनस 1. तो लेट्स सी कि कैसे हम इसको स्टार्ट करते हैं. तो लेट लेफ्ट हैंड साइड, ओके, लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं. व्हाट इज़ लेफ्ट हैंड साइड, 2x प्लस 1 2x माइनस 1
4x square plus 2x plus 1 एंड 4x स्क्वायर। बहुत ज़्यादा विजिलेंट रहने की ज़रूरत है, कोई साइन अगर मिस्टेक होगी तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए, आई विल रीअरेंज इट लाइक दिस, ठीक है। ये 2x प्लस 1 कौन सा फॉर्मूला, सॉरी यहाँ नहीं आएगा ये, ठीक है। 4x स्क्वायर और यहाँ 4x स्क्वायर। अगर हम यहाँ देखें, फोकस करें, तो दिस इज़ 2x प्लस 1 एंड दिस इज़ 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अगर फॉर्मूला आपको याद हो तो दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ a क्यूब प्लस b क्यूब, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब का? a प्लस b इन ब्रैकेट एंड देन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको रीअरेंज कर लेंगे और यहाँ ये फॉर्मूला क्या बन रहा है, दिस द फॉर्मूला ऑफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है। तो इसको रीअरेंज कर लेते हैं। 2x प्लस 1, 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ठीक है। इसको रीअरेंज कर रहे हैं। 2x माइनस 1, 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ओके। कैसे लिख सकते हैं, यहाँ से लिख लेते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला ये और ये मिला के क्या फॉर्मूला बना लेता है, लेट मी राइट इट लाइक दिस, 2x प्लस 1, ठीक है, 2x होल स्क्वायर माइनस 2x एंड दैट इज़ 1, b की वैल्यू क्या है, 1 है, प्लस 1 स्क्वायर, ओके। अब देखें ये कौन सा फॉर्मूला है, दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ a क्यूब प्लस b क्यूब, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ a क्यूब प्लस b क्यूब, ठीक है। और here you will write it like this, 2x minus 1 and 2x whole square plus 2x and the value of b is 1 plus 1 square, okay। तो ये आपने ट्रांसफॉर्म कर लिया है in the form of formula, तो that is 2x whole cube plus 1 whole cube, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन गया और यहाँ माइनस का बन जाएगा 2x माइनस 1 से लेकर, तो दैट इज़ 2x होल क्यूब माइनस 1 क्यूब, ओके। एंड नाउ ओपन इट, दैट वुड बी 4x क्यूब प्लस 1 एंड 4x क्यूब माइनस 1। अब यहाँ देखें तो दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स में दिस इज़ a, दिस इज़ b, दिस इज़ a, दिस इज़ b, ठीक है। तो क्या बन जाता है, a स्क्वायर मीन्स 4x क्यूब होल स्क्वायर एंड माइनस ऑफ 1 स्क्वायर, ठीक है। तो व्हाट इट वुड बी, 4 4s आर 16, x 3 2s आर 6 माइनस 1, ओके। तो ये हमने प्रूफ कर दिया है। इसको कैसे लिख देंगे, इक्वल्स, हम क्या लेके चले थे, लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। एंड लेफ्ट हैंड साइड equals right hand side, hence proved। and this is total marks for, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, शो दैट a क्यूब माइनस b क्यूब अपॉन a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a प्लस b। आपको शो करना है दिस इज लेफ्ट हैंड साइड and this is right hand side, so let's get started from left hand side। यहाँ हम लिख देते हैं left hand side equals a cube minus b cube, ठीक है। यहाँ हमारे पास स्पेस है सॉल्व करने के लिए, so that we are taking left hand side a plus b। अगर बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो मीन्स यू आर गोइंग टू ऐड और सब्ट्रैक्ट, तो सबसे पहले आप एलसीएम ले लेंगे बिफोर फैक्टराइजिंग द एक्सप्रेशन, ठीक है। पहले हम फैक्टराइज नहीं करेंगे, तो दैट इज a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ओके। एंड इन द न्यूमरेटर दैट इज, यहाँ आपका ये, अगर मैं इस पूरी टर्म को उठाकर दोनों इस जगह पे और इस जगह पर इसको मल्टीप्लाई कर दूँ तो दैट वुड बी
क्या बन जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, दैट इज a प्लस बी ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ओके, और यहाँ a प्लस बी और a प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और आपके पास आ जाएगा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ हमने एलसीएम ले लिया है। नाउ आई विल फैक्टराइज द न्यूमरेटर, ठीक है, a प्लस बी ए क्यूब माइनस बी क्यूब। व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ a क्यूब माइनस बी क्यूब? तो इसको अगर हम यहाँ लिखते हैं तो हमारे पास आ जाएगा a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। हमने यहाँ इस जगह फॉर्मूला पुट किया है, ठीक है, एंड दैट इज ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, ये है अपॉन ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको आपने बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहकर सॉल्व करना है। यू मस्ट बी फोकस्ड अ लॉट हियर। अब यहाँ देखिए ये दो टर्म्स बन गई हैं, एक टर्म आपके पास ये वाली है, एक टर्म आपके पास ये वाली है, ठीक है। तो इसमें से क्या चीज़ कॉमन है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। कीप इट इन योर माइंड, यहाँ इसको मल्टीप्लाई नहीं कर देना है, दैट वुड बी रॉन्ग। ओके, यू नीड नॉट टू मल्टीप्लाई इट, ठीक है। यहाँ इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं करना है, जब बल्कि यहाँ इसका फॉर्मूला ओपन कर देना है। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ये कॉमन आ गया है आपके पास, एंड हियर दैट इज ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है, प्लस 1। यहाँ आपके पास प्लस 1 रह जाएगा, ठीक है, 1 रह जाएगा। एंड इन द डिनोमिनेटर दिस इज ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर विल बी कैंसल्ड लाइक दिस, ठीक है। पहले हमने इसको बाहर निकाला, निकालने के बाद प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा, ये देखिए ये प्रोडक्ट फॉर्म है। आफ्टर राइटिंग इन प्रोडक्ट फॉर्म वी कैन कैंसिल दैम, द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, हमने इसको कैंसिल कर दिया। अब यहाँ देखिए a प्लस बी एंड a माइनस बी, दैट इज़ द फॉर्मूला ऑफ डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 अपॉन a प्लस बी, ठीक है। दिस इज योर राइट हैंड साइड, and you can write it like this, left hand side equals right hand side, hence proved. Now let's go towards 2018. So we are going to find out the value of x cube plus 1 upon x cube. तो जब भी आपको क्यूब का फॉर्मूला मालूम करना हो तो आप होल क्यूब का फॉर्मूला लगाते हैं। तो व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ a प्लस बी होल क्यूब? क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस बी होल क्यूब, दिस इज a क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी क्यूब, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर देंगे। द वैल्यू ऑफ a इज़ x एंड द वैल्यू ऑफ b इज़ 1 अपॉन x, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ x प्लस 1 अपॉन x होल क्यूब। क्या फॉर्मूला होता है, x क्यूब प्लस 3x 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x, a प्लस b की जगह क्या आ जाएगा, x प्लस 1 अपॉन x एंड देन 1 अपॉन x होल क्यूब। ओके, अब इसको कैसे लिख लेंगे, x प्लस 1 अपॉन x, थोड़ा सा फॉर्मूला इसका सेट कर लेते हैं, देन वी विल पुट द वैल्यूज, x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब, लेट मी राइट इट टुगेदर, ठीक है, इसलिए कि हमें इसी की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। x विल बी कैंसल्ड, दैट इज प्लस 3x प्लस 1 अपॉन x, ठीक है। अब यहाँ अगर हम देखें तो हमारे पास x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू भी गिवन है, x प्लस 1 अपॉन एक्स यहाँ पर भी गिवन है, एंड वी आर इंटरेस्टेड इन x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है। तो यहाँ हम x प्लस 1 अपॉन एक्स को 5 क्यूब कर देते हैं, और x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3, और इनसाइड द ब्रैकेट x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 5 है, 3 5 आर 15, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हम एक्सचेंज कर लेते हैं, x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, ओके,
प्लस 3 5 ज़ार, इसको 15 लिख लीजिए, 5 5 ज़ार 25, 5 ज़ार 125, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया है। अब आप लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू 125 माइनस 15, दैट वुड बी 5 out of 5 0, 1 out of 2 1, and this is 110. Okay, x cube plus 1 upon x cube, that is the value, answer. Now next part, this is for three quantities a, b and c. If a plus b plus c 80, a square plus b square plus c square is 3000, then find the value of. Very easy question. That was part A. Part B, this is, अब यहाँ हमें किस चीज़ की वैल्यू मालूम करनी है, a प्लस बी प्लस सॉरी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और ये हमें वैल्यूज़ गिवन है। तो मैंने आपको बताया था जब भी स्क्वायर आ रहा हो तो आप होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो थ्री क्वांटिटीज़ के साथ होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ओके। थ्री क्वांटिटीज़ के साथ मीन्स दिस इज़ ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल के अंदर, so this is perfect square of three quantities, perfect square of three quantities, and that is, so there is formula of perfect square, okay, with three quantities, which is a plus b plus c whole square is equal to a square plus b square plus c square plus 2ab plus bc plus ca, okay. Now let's put the values. यहाँ आपके पास a plus b plus c is 80 whole square, and this is a square plus b square plus c square, this is 3000. बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, then you will be able to solve these questions, ठीक है। प्लस सी ए, ये हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख लेती हूँ 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। हमने जो है वो एक्सचेंज कर दिया लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को। दिस इज प्लस 3000, ओके, इक्वल्स 80 मल्टीप्लाइड बाय 80। अब हम इसको कैसे लिख लेंगे, 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल्स 64 and minus 3000, okay, and what it would be 0 0 and 4 and 3 out of 6 3, and we are interested in the value of ab plus bc plus ca, so let me write it like this, divided by 2, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर डिवाइड हो जाएगा, तो that is 1700, the value of ab plus bc plus ca, that is the answer, ठीक है। तो ये भी हमने कंप्लीट कर लिया। now let's go towards, this is 2019, now this question is of 5 marks, 5 नंबर का क्वेश्चन है, पार्ट ए। लेट्स गेट स्टार्टेड। 2x माइनस ए इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2x, प्रूव दैट। अच्छा, यहाँ ना थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, देखिए इधर हमें वैल्यू मालूम करनी, प्रूफ करना है 8x क्यूब प्लस 1 अपॉन 8x क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस 3a, और हमारे पास गिवन वैल्यू है 2x माइनस ए इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2x, ठीक है। तो ये a को हम उठा के राइट हैंड साइड पर लेकर जाएंगे और ये वैल्यू उठा के हम लेफ्ट हैंड साइड पर लेके जाएंगे, ओके। तो व्हाट इट वुड बी 2x प्लस 1 अपॉन 2x इक्वल्स a, ठीक है। प्रूफ हमें ये करना है, ओके। तो इसको प्रूफ करने के लिए आपको नज़र आ रहा है क्यूब लगा हुआ है और क्यूब लगा हुआ है, सो आई विल बी टेकिंग क्यूब ऑफ बोथ साइड्स, ठीक है। यहाँ पर भी क्यूब आ जाएगा, 1 2x होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब, दोनों तरफ हमने क्यूब ले लेना है, एंड व्हाट इट वुड बी, वी विल ओपन द फॉर्मूला ऑन लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज a प्लस बी होल क्यूब। a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab मीन्स 2x 1 अपॉन 2x। फॉर्मूला याद करना इंतहाई ज़रूरी है,
जब भी आप इसको सॉल्व कर सकोगे, वरना सॉल्व नहीं कर सकेंगे. सो दैट इज़ 2x प्लस 1/2x. क्या बन गया ये? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab. ए प्लस बी इज इक्वल टू ए क्यूब. ठीक है, दैट इज ए क्यूब. एंड नाउ व्हाट विल यू डू? यहाँ आपके पास आ जाएगा 2 2 ज़ार 4, सॉरी क्यूब है ये, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8x क्यूब. सही है. एंड दैट इज 1/2x. व्हाट इट वुड बी? 1/8x क्यूब. ओके. अच्छा, यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा. प्लस 3. अब बताइए 2x प्लस 1/x व्हाट इज़ द वैल्यू? दिस इज a इक्वल्स a क्यूब. ठीक है, देखिए ये वही फॉर्म बनती जा रही है, ये फॉर्म बनती जा रही है. सो आई कैन राइट इट लाइक दिस 8x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब. एंड दिस इज a क्यूब. 3a को हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे. दैट इज देयर. दिस इज द सेम फॉर्म विच वी नीडेड टू प्रूव. ठीक है, इसके सेकेंड पार्ट पे आ जाइए. दिस इज हियर कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट. कैसे सॉल्व करेंगे? पार्ट बी. पार्ट बी इज प्रूव दैट 2x प्लस 3y, 2x minus 3y, 4x square plus 6xy plus 9y square, 4x square minus 6xy plus 9y square. इसको हमें प्रूफ करना है 64x6 minus 729y6. तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, लेट मी राइट इट लाइक दिस. लेट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स. ओके, ये है आपका बी पार्ट. ठीक है, तो यहाँ आप देख लें, दिस इज 2x प्लस 3y एंड दिस इज 4x स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 9y स्क्वायर. तो वी विल रीअरेंज द टर्म्स. यहाँ देखें फॉर्मूला बन रहा है. क्या फॉर्मूला है? 2x प्लस 3y एंड दिस इज, लेट मी राइट इट लाइक दिस. ये वाली टर्म, इसको हम लिखेंगे 2x होल स्क्वायर माइनस ए बी में क्या आ जाएगा? 2x और b की वैल्यू क्या है? 3y. ओके, प्लस 3y होल स्क्वायर. ठीक है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो दैट वुड बी 6xy. देखिए यहाँ 6xy मौजूद है. ठीक है, तो इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड. ये यहाँ पर आ गया है. एंड दिस इज 2x माइनस 3y, और इसको अगर हम लिख लें तो दैट वुड बी 2x होल स्क्वायर प्लस 2x 3y. बी टर्म है a एंड b, ए बी. ठीक है, प्लस 3y होल क्यूब. अब अगर मैं यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर लूँ दैट वुड बी 6xy, जो कि 6xy यहाँ आपके पास मौजूद है. ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक दैट वुड बी द फॉर्मूला. बीच में आपने, ठीक है, बिल्कुल सही है. तो यहाँ आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? दैट इज 2x होल क्यूब प्लस 3y होल क्यूब. ओके, that is the formula like this, and multiplied by 2x whole cube minus 3y whole cube. 3y whole cube, let me write it like this. 3y whole cube. Okay, and that would be 2 2s are 4, 4 2s are 8x cube. ठीक है, प्लस 3 3s are 9, 9 3s are 27 y cube. Okay, and 8x cube minus 27 y cube. Okay, and this is difference of two squares formula, a plus b and a minus b. तो मैं इसको भी ऐसे लिख लेती हूँ, स्क्वायर एंड 27 y cube whole square. Okay, and what it would be? 64 and x raised to the power 3 2s are 6 कर देंगे हम इसे, law of power. That would be 729. This is the cube of 27 and that is 3 2s are 6. ठीक है, so let me write it like this. Equals right hand side, ये हमने प्रूफ कर दिया है. लेफ्ट हैंड साइड equals right hand side, and this is proved.
है. This is part B. Prove that simplest form of R is equal to this is R is equal to 1 upon 2m. तो इसे हमें ट्रांसफॉर्म करना है 1 upon 2m में. So let me write R is equal to m minus 1 upon 2, इसको हम ब्रैकेट में ले लेते हैं, डिवाइडेड बाय m स्क्वायर माइनस 1 और मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 1 अपॉन m. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर जाते हैं, m माइनस 1 अपॉन 2 और divide will be changed into multiply and that would be will go in the denominator. Okay, so that is like this multiplied by, यहाँ हम LCM ले लेंगे, m1 1 आ जाएगा प्लस m. okay, and then what it would be, this is m minus 1 upon 2 multiplied by, I will write it like this, m minus 1 formula apply कर देंगे, m plus 1 and plus m plus 1, I will write it like this. okay, so that is there. ये multiply था, not addition. okay, तो ये multiply लगा दिया हमने. now what it would be, that is m minus 1 and m minus 1 will be cancelled and 1 upon 2 m plus 1, ये यहाँ आ जाएगा multiplied by m plus 1 upon m plus 1 will be cancelled, 1 upon 2m. so we have proved that the value of r is 1 upon 2m. okay, Allah Hafiz.